Hello student, I am Dr. S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College Khopoli. The title of our presentation is Economic Importance of Algae. In this presentation we are going to learn what is the economic importance of algae. It is an important topic for a BSc student. Economic importance of algae. So here the chart, which is a simplified chart for your kind perusal. Here you can see the economic importance of algae. The algae is now a important type of plant material for human beings as well as for animals. So here is the chart. You can see how this algae is important. पहले कुछ साल पहले algae को वीड कहा जाता था. वीड यानी कि ऐसा प्लांट जिसका कोई उपयोग नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए या और कोई एनिमल के लिए. तो जो वीड है वो वीड उसको रिमूव करते थे, उसको निकालते थे. एंड दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट algae has no much economic importance. Now this concept is changed. Now we are exploring the different aspects of algae. अब हम algae को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि इसका economic importance क्या हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने बताया कि algae can be used as food, fodder, fertilizer. It is useful in industry, as a biofuel, in medicine, in sewage disposal. So these are the some aspects where algae can be utilized. तो इतने कुछ important aspects है algae के जहाँ हम algae को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज़ है, लेकिन these are the some of the important uses that we can enlist here. So let us see how the algae is important in different ways. तो सबसे पहले यहाँ पे फूड हम देखेंगे, उसके बाद में फॉडर, फर्टिलाइज़र. सो वन बाय वन वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द algae is important and significant for humans as well as for other animals. सो फूड के तौर पे बहुत सारी algae इस्तेमाल की जाती है. These are the some names of algae. ग्रीन algae से लेकर के ब्राउन algae, रेड algae, डायटम्स, सभी प्रकार के algae जो है अभी उसका यूज़ हमें दिखाई पड़ रहा है. सो एज ए फूड हियर आर द नेम्स सच एज एलारिया, लैमिनारिया, सार्गैसम, दुर्विलिया, अल्वा, स्पायरोगैरा, पोरफायरा, नॉस्टॉक, क्लोरेला. So these are some names of algae that can be used as food. So यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो algae है इसका फूड के तौर पे इस प्रकार से उपयोग किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड द preferences of this algae. It is used in different ways. So these are the some names. So these algae are used as food. उसके बाद में fodder के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ algae हैं. So these are Laminaria, Ascophyllum, Rhodymenia, Fucus, Pelvicia, Macrocystis. So these are the some algae. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉडर यानी कि हमारे पास जो अलग अलग किस्म के प्राणी होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ. तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं दे आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स. उनके लिए भी हम पशु खाद्य यानी कि फॉडर बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं. सो कन्वेंशनल फॉडर्स आर देयर, बट दीज आर द मॉडर्न
fodders or modern food for the animals, that is the domesticated animals. Now we are mixing all these algae with the conventional what can I say food for the animal. तो जैसे गाय भैंस वगैरह के यानी पोल्ट्री के अंदर भी जो फूड इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ हेंस दैट इज़ रियर्ड फॉर देयर प्रोटीन कंटेंट, तो ये अलगी है भाई। लैमिनारिया नाम की जो अलगी है ये ब्राउन अलगी है। इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें यू विल फाइंड इन दीज अलगीज. So therefore we can use these algae as fodder for our domesticated animals. Similarly, fertilizers. Fertilizer is one of the important thing that we are using for our enhancement of crop yield. Traditionally we are using some fertilizers, and these fertilizers are polluting the environment. So for that reason we are exploring different biofertilizer. So algae can be used as biofertilizer. तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एज़ोला, एनाबेना एज़ोले, नॉस्टॉक, ओलुसीरा, टोलिपिथ्रिक्स, मैक्रोसिस्टिस, लिथोथैम्नियन, लिथोफाइलम, कैरा. So these are the names of some algae from different divisions and different categories. तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एनाबेना एज़ोले नाम की जो अलगी है, ये साइनोफाइटा ग्रुप की अलगी है. सो दिस अलगी इज़ फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ए प्लांट. इट इज़ ए टेरोडोफाइटिक प्लांट कॉल्ड एज़ोला. तो ये एज़ोला नाम का ये टेरोडोफाइट का प्लांट है. इसके साथ एनाबेना नाम की ये ब्लू ग्रीन अलगी है, वो एक फ्रेंडशिप यानी एक किस्म का सिम्बायोसिस उसके साथ बना लेती है. एंड दिस एनाबेना कैन फिक्स द नाइट्रोजन, एंड दैट नाइट्रोजन रिमेन्स विद द pteridophyte called Azolla plant. And when this Azolla completes its life cycle and it dies, and after death of this Azolla plant, the entire content which is accumulated in the form of nitrates is given to the soil. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सिम्बायोसिस जो है एज़ोला प्लांट और एनाबेना के बीच, उसकी वजह से ये जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाता है. द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड बाय दिस एनाबेना. Similarly, nostoc is there. As you know that nostoc is also an important blue-green algae, and this algae is very efficient in nitrogen fixation. ये algae भी हम पाते हैं कि पैडी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ये algae होता है, जहाँ पे चावल की खेती होती हैं, तो उसके अंदर ये नॉस्टॉक algae जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे पाई जाती है. ओलुसीरा है, टोलिपिथ्रिक्स है, मैक्रोसिस्टिस है, लिथोथैम्नियन है, कैरा है. ये जो अलगीज़ है, ये अलगीज़ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल की जाती है. सिमिलरली इंडस्ट्री तो हमारी बढ़ती जा रही है. वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अलगी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जेलिडियम है, ग्रासिलारिया है, कॉन्ड्रस है, हैपनिया है, फाइलोफोरा है, मैक्रोसिस्टिस, दुर्विलिया, फ्यूकस. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द algae from different divisions, and these algae are used in industry for different purposes. बहुत किस्म के इंडस्ट्रीज़ अभी हम देखते हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्रोसेस के लिए
ये अलगी इस्तेमाल किए जाती हैं। उसके बाद बायोफ्यूल, अभी फ्यूल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स अभी कम होते जा रहे हैं। You know that fossil fuels such as petroleum and diesel is now depleting rapidly. Now therefore we are exploring the new resources for fuel. So therefore biofuel can be produced from this algae. Nowadays alga, so this algae is utilized for the production of ethanol, and this ethanol can be used in vehicles and in industry also. So therefore ये अलगी फ़िलहाल ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल की जाती है एज ए बायोफ्यूल। उसके बाद में मेडिसिन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारे पैथीज़ हैं, जैसे कि एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ medicinal practices. Now we are exploring and finding out different aspects of the algae. So primarily chlorella is used in medicine, Ascophyllum, Rhodomela, Polysiphonia, Lingbaia, Laminaria. So these are the few names of some algae from different divisions that can be used in medicine to produce different kinds of medicines and tablets to cure different diseases. Similarly, another aspect is the sewage disposal. So this is the important significant aspect of modern age. Now disposal of garbage and sewage is becoming a grave problem. So how to manage the disposal of sewage is one of the important issue in the modern age. तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की अलगी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सीवेज के लिए उसका जब ब्लॉक हो जाता है कोई सीवर, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल का जो चैनल है वो कभी ब्लॉक हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। मैकेनिकली उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन नाउ डेज वी आर यूजिंग क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड स्केंडेस्मस. सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड अलगीज टू क्लियर द सीवेज, और जिसको हम कहेंगे कि एफ्लुएंट्स और वेस्ट वाटर. तो वेस्ट वाटर से जो ड्रेनेज वगैरह ब्लॉक होते हैं उसके अंदर से बदबू निकलती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए दिस अलगीज आर यूज्ड. सो डीओडोरिफिकेशन ऑफ सीवर्स इज़ डन विद दिस अलगीज. तो वो वहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है, BOD उसका बढ़ जाता है सीवेज के अंदर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए these algae can be used. So in order to reduce the bad odor emanating from the sewage, Chlamydomonas chlorella and Scindesmus are employed for the purpose. तो इस तरह से हम देखते हैं कि these are the different names of the algae used for various purposes. Therefore these are the economically important algae. अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो तो है फूड, बिकॉज द फूड इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर all of us, and we are finding out different sources of food other than conventional foods. So therefore we are utilizing different algae
as a food. So Cyanophyta as a food. So here you can see nostoc commune and nostoc flagelliforme. These are the common algae used as a food in different parts of the world. ये अलगी हम तो देखते हैं कि नॉस्टॉक अपने पड़ी हैं, तो नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन अलगी है. इट इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन. वहाँ पे हम देखते हैं कि नॉस्टॉक के बहुत सारे कॉलोनीज़, म्यूसिलाजिनस कॉलोनीज़ डेवलप होते हैं. बट दिस कॉलोनीज़ आर abundant at some places. So humans are exploring and trying to explore how this nostoc is utilized. So उसका बायोलॉजिकल और केमिकल असेसमेंट करने के बाद हमें पता चला कि नॉस्टॉक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कुछ फूड मटेरियल्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. It is used as food in China, Brazil and Philippines. So in India it is not very common. भारत के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है फूड के तौर पे, लेकिन एज यू नो चाइना इज़ वेरी फेमस फॉर यूटिलाइजिंग डिफरेंट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज ए फूड. तो हमें पता है कि चाइनीज़ फूड बहुत फेमस है दुनिया के अंदर, क्योंकि चाइना जो है ऐसा कंट्री है वो खाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सोचता है. तो चाइना इज़ यूजिंग दिस नॉस्टॉक. सिमिलरली ब्राज़ील एंड फिलीपाइंस दे आर आल्सो यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स ऑफ नॉस्टॉक एज ए फूड. Nostoc acts as antioxidative, anti-inflammatory, anti-carcinogenic and immune regulatory एक्टिविटी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेटिव के तौर पे काम करती है ये अलगी. एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर है. तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि नॉस्टॉक अलगी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है. So therefore why not use this nostoc as a source of oxidative material, antioxidative material, anti-inflammatory material. कैंसर के लिए भी इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम कैंसर के ऊपर भी ट्रीटमेंट इसके साथ कर सकते हैं. So in this way you will find that this nostoc is also very important algae. So here it is a actual photograph of nostoc commune. So here you can see कि इसको देखते बराबर कुछ लोगों को वो ठीक नहीं लगता है. देखने के बाद it produce a nausea. But these colonies of nostoc contains this mucilaginous substance, and this mucilaginous substance give this colony its peculiar appearance. तो ये जो इस प्रकार का appearance आपको नज़र आता है, ये बॉल्स है, ये बड़ी कॉलोनी बन गई है, बहुत सारे नॉस्टॉक फिलामेंट्स इकट्ठा आ करके इस प्रकार की कॉलोनीज़ तैयार करती हैं. सो यू विल फाइंड दैट इट इज़ a very shiny and gleaming kind of colony. It is a mucilage type of what I can say, एक बॉल है ये, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस इस प्रकार से होता है, लेकिन it is very very useful. Now let us see इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पायरुलिना. ये जो अलगी है स्पायरुलिना, इट इज़ फ्रॉम क्लोरोफाइटा डिवीजन. इट हैज़ वेरी इम्पोर्टेंट यूज़ इन फूड एज वेल एज इन मेडिसिन. सो दिस स्पायरुलिना इज़ अवेलेबल इन मार्केट नाउ. अभी ये स्पायरुलिना नाम की जो अलगी है ये मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है, स्पेशली इन मेडिकल्स. यू विल
फाइंड डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ स्पायरुलिना। ये अलग अलग किस्म के मेडिसिन इसके माध्यम से बनाए जाते हैं स्पायरुलिना नाम के अलगी से। इट इज़ having 70% proteins and lipids with all essential amino acids. So you know that amino acids are very very essential for body of human as well as animals, because amino acids are building blocks of proteins. तो इसके अंदर जितने भी essential amino acids है वो अवेलेबल है। So you can see 70% प्रोटीन एंड लिपिड अवेलेबल इसके अंदर। तो इतना ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है स्पायरुलिना के अंदर। सो देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। विटामिन B1 दैट इज़ कॉल्ड थायमिन, विटामिन B2 कॉल्ड राइबोफ्लाविन, B3 निकोसिनामाइड, B6 पायरिडोक्सिन, B9 फोलिक एसिड, विटामिन A, C, D, E etc. So you can see here all types of vitamins that are essential for overall development of body or cell are available in spirulina. तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ढूंढने के लिए हमें एलोपैथी के या कोई और सिंथेटिक मेडिसिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड ऑल दिस विटामिन्स in the form of spirulina. Phosphorus, selenium, sodium, zinc etc. These are also important elements required by the body, especially brain के अंदर सेलेनियम वगैरह लगता है। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं इट इज़ अवेलेबल इन स्पायरुलिना। फाइकोसायानिन ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक एंड इम्यूनिटी बूस्टर व्हाट कैन से बायोकेमिकल कॉल्ड फाइकोसायानिन। तो ये फाइकोसायानिन नाम का एक पिगमेंट है। इट इज़ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट विच इज़ अवेलेबल इन दिस स्पायरुलिना। और ये जो है ये बहुत अच्छी तरह से कैंसर को भी काउंटर करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Its protein reduce absorption of cholesterol, hence reduce heart problems. So cholesterol is one of the important biochemical which is causing heart problems. So this protein which is available in spirulina, it reduces absorption of cholesterol. अब कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन भी करते हैं तो उसको एब्सॉर्प्शन कम करता है। ये इसके अंदर जो प्रोटीन होता है स्पायरुलिना का वो कोलेस्ट्रॉल का अब्सॉर्प्शन कम करने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो फिर हार्ट प्रॉब्लम भी कम हो जाते हैं। सो इट्स प्रोटीन रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स एंड रिड्यूस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, thus reduce heart troubles. So heart troubles increases when arteries become hard. So this is the important thing. हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जो है वो कम करता है ये इसका प्रोटीन, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पायरुलिना इज़ concentrated with zeaxanthin, a plant pigment that may reduce the risk of cataracts and age-related vision loss. तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर zeaxanthin नाम का जो बायोकेमिकल है पिगमेंट है, एंड दिस पिगमेंट इज़ यूज़फुल फॉर आवर आइज़। तो आँखों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। Then spirulina increases nitric oxide production in your body as well as which helps your blood vessels relax. Studies show that this can reduce your blood pressure, lowering your heart disease risk. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर भी कम करता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो it adversely affects to the heart. So it controls blood pressure. और इसका जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो होता है ये बॉडी के लिए यूज़फुल है, जिससे ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो इस प्रकार से स्पायरुलिना नाम का जो अलगी है, बीन अलगी,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस। तो देखिए इस प्रकार से ये फिलामेंटस अलगी है, ग्रीन अलगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी अलगी है। Here you can see the important aspects of spirulina and its benefits. So here you can see potassium content of spirulina is 4 times more than banana. So as we know, banana is having good content of potassium, but the potassium content of spirulina is 4 times more than banana. Then protein content is 2 times more than yogurt. Calcium content is 14 times more than milk. तो देखिए कि दूध के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उससे 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम स्पाइरुलिना के अंदर होता है। इट हैज़ आयरन 9 टाइम्स मोर देन स्पिनच, पालक जिसको बोलते हैं स्पिनच। तो इसके अंदर जितना भी आयरन है उससे 9 गुना ज़्यादा आयरन स्पाइरुलिना के अंदर होता है। 4 टाइम्स मोर फाइबर दैन ओट्स। तो फाइबर कंटेंट भी इसका अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता नहीं, बॉवेल का मूवमेंट अच्छी तरह से होता है। विटामिन ए का भी कंटेंट देखिए कि 2 टाइम्स मोर दैन कैरोट। तो हम बोलते हैं कि कैरोट के अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है, कैरोटीन है उसके अंदर, लेकिन स्पाइरुलिना कंटेंस 2 टाइम्स मोर देन विटामिन ए कंपेयर टू कैरोटीन। सो हियर यू कैन सी हाउ दिस स्पाइरुलिना इज़ एनरिच्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो इसको हम देखते हैं तो समझ में आता है कि स्पाइरुलिना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Here you can see the medicines in the form of tablets and powders, isn't it? स्पाइरुलिना का ये टैबलेट भी बनता है, पाउडर भी बनता है, and now it is available as a nutraceuticals in medical shops. So on the recommendation of doctors you can consume this spirulina. Now economic importance as food. तो फियोफाइटा की एल्गी जो है उसके अंदर भी अच्छी तरह का अमीनो एसिड होता है। 17 किस्म के अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल इन फियोफाइटा एल्गी। तो फियोफाइटा जो है ब्राउन एल्गी, जैसे उसके अंदर जो एग्जांपल्स है ब्राउन एल्गी के, एलारिया, ये मराइन एल्गी है फियोफाइटा का, और इसका जो विटामिन बी और सी का कंटेंट है वो अच्छा है, इसीलिए ये यूज़फुल है। Besides these 17 essential amino acids, vitamin B and C are abundant in this Alaria, which is a marine algae. And a special dish is prepared in China called sarumen. तो ये sarumen नाम का स्पेशल डिश बनाया जाता है चाइना के अंदर। कोम्बू is prepared from laminaria. Laminaria is also a brown algae from Phaeophyta. तो इससे कोम्बू नाम का एक डिश बनाया जाता है जापान के अंदर। दुर्विलिया इज़ ड्राइड एंड साल्टेड टू मेक कैचिनियागो इन अमेरिका। अमेरिका में इसको सुखा करके, ड्राई करके इसको नमक लगाया जाता है, और उसका ये स्पेशल नाम है कैचिनियागो। ये अमेरिका के अंदर लोग इसको खाते हैं। जैसा हमारे इधर सुक्कट होता है, फ़िश का बोम्बिल वगैरह बनाते हैं सॉल्टिंग करके, उसी प्रकार से दुर्विलिया ये जो अलगी है इसको ड्राई करके सॉल्ट लगा करके बहुत महीनों तक हम प्रिजर्व करके खा सकते हैं। हियर इज़ फोटोग्राफ ऑफ लैमिनारिया डिजिटाटा। तो स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, डिजिटा हो गया, डिजिटाटा है। सो लैमिनारिया डिजिटाटा, तो यू कैन सी ब्राउन algae. So it is a very clear cut brown color. Fucoxanthin pigment is very dominant in this algae. So this is the algae laminaria. तो कितना बड़ा algae है, you can see it is called kelp. Then Dirwilia antarctica
ये भी अलगी है, ब्राउन अलगी। सो हियर यू कैन सी, ये अलगी इस प्रकार से नज़र आता है। सो दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस अलगीज। रिबन केल्प, ये रिबन लाइक लगता है इसलिए इसको कहते हैं रिबन केल्प। सो अलारिया मार्जिनेटा, ये फियोफाइटा का अलगी है। तो यू कैन सी लीफ लाइक अपीयरेंस है इसका, इसलिए इसको रिबन जैसा लगता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलगी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डिशेज। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी एज फूड, रोडोफाइटा का भी फूड के लिए ऐसा उपयोग होता है इसका। पोरफायरा, पामारिया, कॉन्ड्रस, रोडोमेनिया, ये कुछ रेड अलगीज हैं, वो फूड के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। देन पोरफायरा, ये पोरफायरा से नोरी नाम का डिश बनाते हैं जापान में। लेवर नाम का डिश बनाया जाता है इंग्लैंड में। तो इसके अंदर बी एंड सी विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दिस पोरफायरा इज़ ऑल्सो यूज़फुल। जेलिडियम, ग्रासिलारिया, कॉन्ड्रस, हेपनिया. So these are the algae used for the preparation of agar-agar, which is used as a jellifying agent in ice cream, custard etc. तो ये जेली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेडिसिन में, लेबोरेटरीज में ये मीडिया बनाने के लिए काम आता है agar-agar. So it is a kind of carbohydrate which is obtained from these algae. These are the red algae. So here you can see the photograph of Porphyra umbilicus. ये है वो अलगी Porphyra umbilicus जिससे ये नोरी बनता है। Then this is the red algae, Gelidium amalsine, ये भी अलगी है। So you can see very beautiful algae, इससे आगार आगार बनता है। So in this way you will find that these are the different uses of algae. फॉडर के तौर पे, एज यू नो दैट फॉडर इज़ यूजफुल फॉर फीडिंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स। लैमिनारिया, सारगैसम, फ्यूकस, पेल्विशिया, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफाइलम, दीज आर द नेम्स ऑफ सम अलगी दैट कैन बी यूज्ड इन पोल्ट्री, इजंट इट। इसके अंदर आयोडीन ज़्यादा होता है। ये जो अलगीज है ये समंदर में पाए जाने वाली अलगी है, तो इसलिए इसके अंदर जो है तो आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आयोडीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। तो आयोडीन की जो मात्रा इसके अंदर होने की वजह से क्या होता है, ये फॉडर के तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये एनिमल जिसे ये अलगी को अगर कंज्यूम करता है तो वो एनिमल के प्रोटीन के अंदर आयोडीन, उसके बॉडी के अंदर आयोडीन ज़्यादा रहेगा। और सच जो मीट होता है, फ्लेश होता है, वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस आयोडीन विल कम टू आवर बॉडी। तो इस प्रकार से आयोडीन की कमतरता अगर होती है तो ये बहुत अच्छी अलगी है। बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यू विल फाइंड दैट नाइट्रोजन फिक्सर्स, एनाबिना एजोले, जैसा कि इसका जिक्र मैंने किया था, एनाबिना एजोले। तो ये एनाबिना नाम की जो अलगी है ये एजोला प्लांट के साथ एसोसिएशन करती है, दैट इज़ ए सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। एंड दिस एनाबिना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and this nitrogen is deposited in azolla plant, and when this azolla plant dies, the content which is accumulated in the form of nitrate, and that nitrate is given to the soil. So therefore soil is enriched with nitrogen. So in this way you will find that Anabina azole is the algae which help to increase the nitrogen content of the soil. तो इस प्रकार से ये एजोला नाम का जो प्लांट है उसके साथ एनाबिना सिम्बायोसिस करती हैं, एंड एनाबिना फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. Similarly, nostoc, Alucera and Talipothrix, these algae have the mechanism for nitrogen fixation. और ये सब algae जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और जब इनका डेथ हो जाता है तो इनके बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन जमा होता है, दैट नाइट्रोजन गोज टू द सॉइल, और इस प्रकार से हमारी जो सॉइल होती हैं, खेत होता है, वो नाइट्रोजन से युक्त हो जाता है. So in this way this algae is useful in fields also, farm also. Similarly, our industries are also utilizing
different kinds of algae. इंडस्ट्री में आगार आगार बनाया जाता है. It is a kind of material which is used in industry for different uses. रोडोफाइटा से ये बनता है. जैसे कि रोडोफाइटा जो होता है वो अलगी जो है, इसकी इम्पोर्टेंट अलगी जिसे हम जेलिडियम कहते हैं, ग्रासिलारिया, उसके बाद में हैपनिया, कैम्फेलोफोरा है, टेरोक्लैडिया है, यूचेयुमा है, जिगार्चिनिया है, कॉन्ड्रस है, फाइलोफोरा. ये सारे जो नेम्स है अलगी के, ये रेड अलगी से हैं और इससे आगार आगार बनता है. एंड दिस आगार आगार इज़ यूजफुल इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन लेबोरेटरी. तो फूड के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. कैराजिनिन नाम का एक बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस नाम के अलगी से, विच इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक. इट इज़ यूज्ड इन डीओडोरेंट्स, पेंट्स, टेक्सटाइल, ब्रीविंग इंडस्ट्री. इट इज़ यूज्ड एज ब्लड कोएगुलेशन एजेंट. ब्लड का कोएगुलेशन होता नहीं है कुछ पेशेंट के अंदर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस क्रिस्पस. Alginic acid, this is also one of the important biochemical which is obtained from Laminaria, Macrocystis, Durvillia, Ascophyllum, Lawsonia, Fucus, Cystoceria etc. तो ये जो है अल्जेनिक एसिड, ये इमल्सिफायर बोल के काम करता है, जेलिंग एजेंट बोल के काम करता है इन कन्फेक्शनरीज एंड इन डेंटल इम्प्रेशंस. तो कन्फेक्शनरी आपको पता है जहाँ चॉकलेट वगैरह बनते हैं, केक वगैरह बनते हैं, उसके अंदर भी ये जेलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है अल्जेनिक एसिड. फ्यूनोरी, ए काइंड ऑफ ग्लू. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लियोपेल्टिस फ्रूएटा. तो ये जो है ये एक किस्म का ग्लू होता है. ये पेपर और क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और ग्लियोपेल्टिस फ्रूएटा नाम के अलगी से ये पाया जाता है. So you will find that soda, potash, iodine, bromine etc. are the minerals obtained from Rhodophyta and Phaeophyta algae. So these are the different elements and biochemicals that are obtained from these algae. ये मिनरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. रेड अलगी और ब्राउन अलगी से ये प्राप्त किया जाता है. तो ये हो गया. अभी मेडिसिन के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज़ है. एंटीबायोटिक्स जो है हम देखते हैं कि एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक्स बहुत सारे होते हैं. एंड दिस एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट आर्टिफिशियल केमिकल्स. हियर यू विल फाइंड दैट क्लोरेला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी. फ्रॉम क्लोरेला क्लोरेलिन इज़ ऑब्टेन्ड विच एक्ट्स एज ए एंटीबायोटिक. क्लोरेलिन नाम का जो है तो एक बायोकेमिकल आता है क्लोरेला से, एंड इट एक्ट्स एज ए एंटीबायोटिक. अस्कोफाइलम नोडोसम, रोडोमेला लैरिक्स, लैमिनारिया डिजिटेटा, निश्चिया पैलिया. These are the some names of the algae and they produce certain biochemicals called antibiotics. And these antibiotics can be used against some bacteria such as E. coli, Pseudomonas and Mycobacterium. So these are the some names of bacteria. Against these bacteria, these algae produce antibiotics, and these antibiotics can be used in medicine. Anthelmic drugs is also obtained from Diagenia simplex. So this is the algae that produces anthelmic drugs. तो ये एंथेल्मिक ड्रग्स है तो ये एंटीपैरासाइटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. देन इन सीवेज मैनेजमेंट there are some algae such as Chlamydomonas, Chlorella, Euglena, Scandesmus. These are the some algae now employed in the sewage management. So as I have told you, sewage system sometimes get blocked and there is a bad odor, and that bad odor is harmful to the human health.
So therefore aeration and oxygenation is done with the help of these algae, and therefore ultimately deodorization of the sewers can be achieved. तो बहुत सारा ड्रेनेज वगैरह होता है वो वहाँ पे ब्लॉक होता है ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, और वहाँ पे एक गंदगी और एक बदबू भी तैयार होती है, तो उसको कम करने के लिए ये अलगी इस्तेमाल किया जाता है. सो यू विल नो दैट sewage management and waste management is also becoming a great issue nowadays. So therefore these algae can be employed there. Some algae produce adverse effect. So we are looking at the economic importance of the algae, but there are certain algae that produce adverse effect to the humans or animals. Some algae produce water blooms and they contaminate the potable water. तो जो पीने का पानी होता है, पीने के पानी के जो स्टोरेज होते हैं उसके अंदर भी सम अलगी डेवलप हो जाते हैं, डायटम्स डेवलप हो जाते हैं, ग्रीन अलगीज डेवलप हो जाते हैं, और वो अलगी क्या करते हैं कि वो पानी का जो टेस्ट होता है उसको ख़राब कर देते हैं, पानी को एक तरह की बदबू भी आ जाती है. तो इस प्रकार से यू विल फाइंड दैट सम अलगीज पोल्यूट द वाटर बॉडीज, इजंट इट? दोज वाटर बॉडीज वी आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब अलगीज बहुत हेल्पफुल है. तो कुछ ऐसे अलगीज है वो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल अलगीज, बट देर आर सर्टन अलगीज दैट कॉज प्रॉब्लम्स टू द humans or animals. So in this way you will find that this is the economic importance of the algae. Hope you understood this presentation, and I recommend you that you visualize this video repeatedly and prepare your own notes. Thank you.